Hi, I am Syed Rashid. You are watching Ahlabad High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today we will going to continue our class 8th physics chemistry coal and petroleum. Like this is chapter number 7. Okay, and our today's topic is nothing but coal, petroleum and gas as natural fuel. So all the viewers and students, may I know that which part of this चैप्टर डील विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री? ये जो चैप्टर है कौन से पार्ट से यूजुअली डील करेगा? फिजिक्स और केमिस्ट्री. सो सिमिलरली ये जो है सिंपली केमिस्ट्री से डील करेगा इस चैप्टर. सो लेट अस बिगिन दिस थिंग. अर्ली पीपल यूज क्लीन फॉर कुकिंग बट नाउ पीपल यूज गैस स्टोव्स और केरोसिन स्टोव्स. अर्लियर फूड वॉज कुक्ड यूजिंग वुड एज फ्यूल, देन कोल. Now kerosene and LPG are begin use. Fuel is needed not only for the cooking but also for transportation. Different vehicle, train, bus, car, two-wheelers, etc. are used for traveling along distances and they use different fuels. People also travels by ship. What fuel is used there? Fuel is also required for electricity generation or generator. Look at the board, all students. The part which I was reading in English, I will going to explain this in Hindi. So fuel, what is the use of fuel? That means what is the need of fuel? First we are using fuel for cooking, okay, and second for mainly transportation. In cooking we have different type of like method to cook. Like we can cook using wood, okay, using like coal, or nowadays we are using LPG stoves or we are using kerosene. So this type of methods we are using for cooking. And for transportation we have many things, like we are using many vehicles. In different vehicles we will going to put different fuels. Usually we are putting fuels like petrol, okay. Apart from petrol we are using as diesel, okay. Apart from this nowadays we are using like CNG, compressive natural gas. We are using like CNG. And in earlier like trains, like you can say that engines, the engine which is invented by James Watt, in that engines we usually you are using like coal. So this type of things uses in transport as well as cooking. So you can understand the need. जैसा कि आप समझ सकते हैं ऑल स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, हम आपको फ्यूल कहाँ की ज़रूरत पड़ती है यानी नीड रहती कुकिंग में. कुकिंग में हम अलग अलग तरीक़ों से कुक करते, वुड से करेंगे, कोल से करेंगे, LPG से करेंगे, केरोसिन से करेंगे. वेराज ट्रांसपोर्टेशन में हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? पेट्रोल, डीजल, CNG, कोल, ये चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती. अब आप देख सकते हैं जो हमारे पास वुड है, कोल है, उसका कैसा यानी कि स्प्लिट लैंप रहता है, यानी कि उसका बंसर बर्नर यानी कि चूल्हा कैसा रहता है उसका. LPG और केरोसिन का चूल्हा कैसा रहता है? आप आपके स्क्रीन, मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे लगाता हूँ, ये देखिए. जैसा आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको वुड या कोल से चलने वाला बर्नर दिख रहा है यानी कि चूल्हा दिख रहा. उसके बाद आप देख सकते हैं केरोसिन से चलने वाला चूल्हा दिख रहा. उसके बाद लास्ट पे आप देख सकते हैं एक स्टोव है जो आपको यानी कि LPG से रन होगा. होप यू सॉ द इमेज. नाउ आई एम रिमूविंग द इमेज. Now one more important thing we have to discuss about the fuel. Nowadays in our previous session I said that one of the artificial thing which is a part of our life, so we may not skip that thing. कुछ एक आर्टिफिशियल चीज़ें रहते हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए, उसको हम छोड़ नहीं सकते. जैसे आर्टिफिशियल फाइबर्स है, ज़िंदगी का हिस्सा बन गए, उसको छोड़ नहीं सकते. प्लास्टिक न को यूज़ करो बोल तो फिर मैं यहाँ पे ठहर के आपको लिखा भी नहीं सकता कुछ भी. फिर मेरे को मेटल का बनाना पड़ता. अगर मेटल का भी बनाया तो उसके अंदर अगेन मेरे को वुड या प्लास्टिक का यूज़ करना पड़ेगा, जो उसके अंदर एक वो रहता है, ठीक है, इंक स्टोर करने के लिए. आप कह सकते हैं कि एक वीक के जैसा बत्तियों में रहता वीक, उस तरीके के रहता. आई विल शो यू, ठीक है, कैसा रहता है वो. वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स. तो अगर मेरे को इनकेस अगर आप देखिए, आप देख सकते हैं कि ये वीक जैसा है, ठीक है. वैसे ये रेड मार्कर है तो रेड कलर का है, ब्लू का रहा तो ब्लू है. तो अगर चाहे मेरे को प्लास्टिक यूज़ नहीं करो बोले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको मेटल से बनाना, उसके अंदर का घास से या फिर वुड से बनाना पड़ता. लेकिन घास से बनाने में प्रॉब्लम क्या है? घास जल्दी से डिकम्पोज हो जाती, यानी कि प्लास्टिक तो आपको अब मैं ये मार्कर 2 महीने 4 महीने चला सकता हूँ. वो अगर वुड का रहा तो एक हफ्ते में उन्हें सड़ना गलना शुरू हो जाता.
कुछ चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए, हालांकि वो आर्टिफिशियली है या मैन मेड है, उसके बगैर इंसान को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। वन मोर थिंग, आर्टिफिशियल चीज़ में एक और एक चीज़ है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी अब वो अगर वो बंद कर दिए ना 1 घंटे के वास्ते भी परेशान हो जाते हैं अपन लोग। क्या है परेशान हो पूरे स्टूडेंट्स व्यूवर्स, वो क्या है जल्दी बोलो, दिख रहा है यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ना वो भी 2 टाइप का जनरेशन रहती, वो अलग अलग जनरेशन रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बहुत टाइप से बना सकते हैं, लाइक हाइड्रो पावर कहते हैं जो पानी की मदद से बनेगा, थर्मल पावर कहते हैं जो आँच या फिर आपको कोयले की मदद से बनाएंगे, सोलार एनर्जी या सोलार पावर बोलते जो सूरज की रोशनी की मदद से बनाते। तो एक होता है जनरेटर। अब देखो अपने स्कूल या घर में तो नाउअडेज इन्वर्टर्स आ रहे हैं, स्कूल में भी इन्वर्टर्स रख रहे हैं, लेकिन इससे थोड़ा पहले आज से अगर हम 5 इयर्स बैक जाएंगे, ज़्यादा नहीं 5 या 10 इयर्स, तो जनरेटर बोल के रहता था। तो जनरेटर मेनली डीजल से काम करता था, डीजल से उसका वर्क होता था, इलेक्ट्रिसिटी को आपको जनरेट करता था। अर्लियर यू रीड दैट विंड पावर वॉज यूज इन विंड माइल्स, देन द स्टीम इंजन which use coal was invented during the industrial revolution. During this period, steam engine was used to power everything from cloth loom to vehicle on land and water. Coal was the most important fuel in the 19th century. It is an exhaustible resource, but we can meet our need for another 250 to 300 years at the current rate of use. Till 1950, coal accounted to half of the electricity generation in the world. Coal was replaced by petroleum with the invention of more effective engines in different vehicles. Now coal is most used to produce electricity in the thermal power plant. The theory part which I was reading I kept on your screen. जो थ्योरी पार्ट में आप पढ़ रहा था आपके स्क्रीन पे भी रख दिया था वो, तो देखिए उसमें समझाना क्या चाह रहे हैं। इंग्लिश में तो आप थ्योरी पार्ट देख लिए है और आप चाहे तो आपके क्लास वर्क में लिख के भी रख सकते, और थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम थ्योरी पार्ट जो स्क्रीन पे था, उसके बाद आगे बढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, coal is an ancient gift serving modern society. Coal has been known and used for thousands of years. It is one of the earliest source of heat and light, but it became a fuel of importance only after the industrial revolution, which led to an increase in demand as fuel. Do you know that the coal obtained from the firewood and the coal used in vehicles and factories are different? Coal used in factories is mined from the earth crust. The coal obtained from the firewood is usually charcoal. तो देखिए अब यहाँ पे ये जितना भी मैं थ्योरी पार्ट आपके स्क्रीन पे लगाया था, नाउ द टाइम टू एक्सप्लेन इन हिंदी। अगर आप इंग्लिश में अगर इसको समझना चाह रहे हैं तो वो थ्योरी पार्ट को 1 से 2 मरतबा रीड करके आप समझ सकते, हिंदी में समझने की बारी अब है। देखिए पहले हम जो है विंड माइल्स का यूज़ करते थे, ठीक है, पावर जनरेट करने के लिए, यानी कि वही इलेक्ट्रिसिटी जो हम तो हम पहले विंड माइल्स को यूज़ कर लेते थे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। फिर आगे विंड माइल्स के बाद हम क्या करें, एक स्टीम इंजन आया। ठीक है, स्टीम इंजन किस पे चल रहा था? ऑल स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता ही है स्टीम इंजन कभी भी कोयला यानी कि कोल के ऊपर रन होता है। ठीक है, फिर स्टीम इंजन आने के बाद एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जैसा आया, कि इनकलाब के जैसा आया, क्योंकि ये इंजन ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया। तो ये जो स्टीम इंजन एक ऐसा यानी कि पावर हो गया था, इंसानों की क़ुव्वत हो गई थी कि हर चीज़ कपड़े से लेके वो यानी कि व्हीकल यानी कि आपको यहाँ से अगर आपको ऑटोज़ या कार्स को हैदराबाद सिटी से लेके आपको बेंगलोर को सेंड करना है या भेजना है, तो क्या करेंगे आप? या तो आप प्लेन में भेजेंगे इसको, या फिर आज के दिन मालगाड़ी बोल के रहती जो रेल के जैसी रहती उसमें हम भेजते। तो पहले के ज़माने में स्टीम इंजन में भेजा जाता था। तो कोल एक ऐसा इम्पॉर्टेंट यानी कि आपको फ्यूल बन गया 19th सेंचुरी से, बहुत अहमियत रह गई उस फ्यूल की। मगर के प्रॉब्लम ये है, इट इज़ एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। ये जो रिसोर्स है ये कभी भी एक वक्त के बाद थक जाएगा या फिर बस इनफ बोलेगा वो। तो मगर के एक उसमें अच्छाई क्या है, एक अच्छाई है, एक उसके अंदर बुराई है। अच्छाई क्या है, जिस तरीके से हम कंज्यूम कर रहे हैं कोल आज के टाइम पे
इतना कंज्यूम करे तक हमको कम से कम आसानी से 250 to 300 ईयर तक रन हो जाएगा ये। लेकिन 1950 के शुरू होते होते या ख़त्म होते होते हमारे जो वर्ल्ड में जितना कोल था ना, उसका हाफ कोल का यूज़ हो गया। अब 1950 के बाद पूरे वर्ल्ड में हमारे पास सिर्फ हाफ कोल ही बच गया, लेकिन ये कोल भी इतना काफ़ी है कि हमको 250 ईयर से लेके 300 ईयर तक आपको वो होता। उसके साथ साथ क्या है, कोल क्या है, जैसा कि अभी बोल रहा था मैं, विंड माइल से आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे, फिर कोल से भी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करना शुरू करे, स्टीम इंजन चलाना शुरू करे। फिर उसके बाद कोल हल्लू से रिप्लेस हो गया। अब कोल क्योंकि ख़त्म होते जा रहा, हमेशा हर चीज़ कोल से ही नहीं वो कर सकते, तो उसमें और कुछ चीज़ें निकाले। कोल को हल्लू रिप्लेस कर दिए किससे, पेट्रोलियम से। कोल की जगह कौन लेने लगा, हल्लू पेट्रोल लेने लगा। फिर अब एक वक्त ऐसा भी आ जाता पेट्रोल की जगह कोई और लेता, और ये होके ही रहता। ये ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री है, हमेशा से बदल रही और हमेशा बदलते रहती। लेकिन हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट बोल के एक हमारे पास स्टेटमेंट रहता, वो बदल के अलग रूपों में आती, लेकिन वो होते रहती। नेक्स्ट, उसके साथ साथ क्या है, कोल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा। अब कोल के बारे में छोटा सा ब्लॉक था, जैसा कि आप देख रहे थे आपके स्क्रीन पे राइट साइड में एक बॉक्स जैसा बने हुआ था। हाँ, तो उसमें क्या बता रहा कि कोल क्या है, एक एंसेंट गिफ्ट है जो सर्विंग कर रहा मॉडर्न सोसाइटी। यानी कोल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पुरखों ने, हमारे आबाओ अजदा ने इसको तलाशा था, सर्च करा था, लेकिन इसका फ़ायदा कौन, हम लोग उठा रहे हैं। तो देखिए कोल क्या है, ऐसा यानी कि फ्यूल है जो हज़ारों सालों से यूज़ हो रहा। और कोल हमारे को मेन किसके वास्ते चाहिए भाई, कोल का जो है मेन चीज़ क्या है, हीट पैदा होती इसके अंदर, और क्या पैदा होती, हीट के साथ लाइट जनरेट होती। ठीक है, हीट और लाइट हमको निकल के आती कोल से। लेकिन ये इसका काम सब पहले समझते थे हीट एंड लाइट ही आएगी, बट आगे क्या हुआ कि इन्हें एक फ्यूल के जैसा काम करना शुरू करा, जिसकी वजह से एक इनकलाब के जैसा आ गया इंडस्ट्रिया में और कोल की डिमांड बढ़ने लगी। अब यहाँ पे कोल के 2 टाइप्स के कोल्स रहते। एक कोल जो होता है हमको फायर ऑफ वुड, यानी कि लकड़ियों को जलाने से निकल के आता, और एक कोल होता है हमको जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर रहता। तो जो कोल हमको अर्थ के क्रस्ट में रहेगा वो कोल हम यूज़ करेंगे एज ए फ्यूल, वेरस जो कोल हमको वुड को जलाने से आता वो डोमेस्टिक पर्पस के वास्ते हम उसको यूज़ कर लेते। तो ये कोल से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरी पार्ट आपके पास लगाया था, तो वो पूरा आप कोल से रिलेटेड पढ़ लीजिए और आपके आंसर्स यानी बुक में लिख लीजिए, जो स्क्रीन पे मैं लगाया था आज। ठीक है, नेक्स्ट है पेट्रोल के बारे में देखेंगे, पूरा एक प्रोसेस के किस तरीके से वो डील होता और उसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एक स्क्रीन पे लगाऊंगा, उसमें पहले इंग्लिश में रीड कर देता हूँ, फिर हिंदी में समझा देता हूँ। शायद वो स्क्रीन आपके, वो जो पिक्चर है आपके स्क्रीन पे कुछ देर तक जैसी है वैसे ही रहेगी। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स लुक एट द स्क्रीन, यू आर सीइंग अ वन लाइक इमेज, इन दैट इमेज द हेडिंग सेज डू यू नो, क्या आप जानते। तो देखिए थोड़ा सा पहले मैं रीड कर लेता हूँ। पेट्रोल एंड डीजल which are used in vehicles today are obtained from mineral called petroleum. Petroleum has been known almost since prehistoric time, more than 4,000 years ago. Petroleum product was used in the construction of walls and towers of Babylon. They are also record from ancient China about shallow wells being dug to get petroleum. But what did our ancestors do with this petroleum? They mainly used for making their wooden boats waterproof, as a fuel for lamps, and in some traditional remedies. We realized the importance of petroleum only after science and technology progressed to give us petrochemicals and petrol to run engines. तो देखिए जैसा कि आपके स्क्रीन पे मैं थ्योरी पार्ट लगाया था, उसको थोड़ा मैं हिंदी में समझाता हूँ। उससे पहले हम थोड़ा राइट साइड पे आपको जो डायग्राम शो हो रहा है उसके बारे में हम बात कर लेंगे और उस पर थोड़ा सा वर्क कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रहा है उसमें आपको सब में पहले ड्रिलिंग रिग बताया जा रहा। तो ये मेन हमारे लैंड पे रखेंगे, यानी कि ज़मीन पे रखते हैं। और उसके बाद आपको एक लाइट, आपको बिल्कुल लाइट येलो कलर के जैसा दिखा रहा, जो येलो और ग्रे मिलता जुलता है।
अर्थ क्रस्ट लिखे हुआ है उसके ऊपर, आप देख सकते हैं। तो ये जो है अर्थ का क्रस्ट है, यानी अर्थ का ऊपरी भाग है। फिर सेकंड आपको दिखाया जा रहा है एक ऐसा सेमी सर्कल के जैसा बना के इन परवेसिव रॉक, यानी कि एक रॉक के जैसी लेयर है। फिर उसके बाद आपको बताया जा रहा है पेट्रोलियम, ठीक है, नो उसके बाद आपको बताया जा रहा है रेड कलर के उसमें नेचुरल गैस। फिर रेड कलर के बाद नीचे आपको ग्रे कलर में शो किया जा रहा कि वो पेट्रोलियम होता है। फिर पेट्रोलियम के नीचे अगेन आपको वाटर, पानी नज़र आ रहा। फिर उसके नीचे अगेन इन परवेसिव रॉक। तो ये तरीके का डायग्राम है कि पेट्रोल किस तरीके से आपको पाया जाता। लेकिन आप आने वाले क्लासेस में इससे भी बहुत डिटेल पेट्रोल के बारे में स्टडी करने वाले हो। तो ये डायग्राम आपको 2 टाइम उतार लेना है और ये डायग्राम को याद रख लेना है, ठीक है। आपको जो थ्योरी पार्ट में आपके स्क्रीन पे लगाया हूँ वो पार्ट में अभी आपके स्क्रीन से हटा रहा हूँ। तो अब आप मेरी तरफ देखो। ओके, देखिए पेट्रोलियम और डीजल क्या है, यूजुअली क्या है आज की तारीख में एज ऑन टुडे व्हीकल्स में यूज़ हो रहा, ठीक है, जो हमको मिनरल होके आ रहा। लेकिन पेट्रोलियम क्या है, प्री हिस्ट्री टाइम का एक चीज़ है, लाइक 4000 ईयर्स अगो, यानी 4000 साल पहले, ठीक है, बेबीलोन नाम का एक प्लेस थी, ठीक है, बेबीलोन एक प्लेस थी जहाँ पे उसके जो दीवारों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ जो चाइनीज़ थे पहले के ज़माने में, वो लोग डीप यानी कि जो वेल होती, बाउली कहते हैं, बहुत अंदर तक बाउली खोद के एक चिगट लिक्विड निकालते थे, वो होता था पेट्रोलियम। तो उसके साथ साथ हमारे एंसेस्टर यानी आबा व अजदा को पेट्रोलियम के बारे में उतना स्टडी या नॉलेज नहीं थी। मेनली वो थोड़े चीज़ों के लिए यूज़ कर लेते थे, जैसा कि उनके जब उन्हें यूज़ करते थे, वुडन बोट्स रहते ना, जो लकड़ी के बोट्स हैं, वुडन बोट्स, BOATS, वुडन बोट्स को वो लोग वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ करते थे, यानी उसके अंदर ना ही वाटर आना ना जाना। आपको कभी क्वेश्चन पूछ सकता, व्हाट आर द यूजेस ऑफ पेट्रोलियम इन आवर एंसेस्टर्स टाइम, यानी एंसेस्ट्रियल टाइम क्या यूज़ था बोल, तो आप बोलना दे यूज़ इन वुडन बोट फॉर वाटर प्रूफिंग। उसके बाद दे यूज़ टू मेक वॉल्स, ठीक है, वॉल्स बनाने के लिए यूज़ होते थे एक्सेट्रा। लेकिन नाउअडेज अगर आपको आंसर ऐसा पूछा व्हाट आर द यूजेस ऑफ पेट्रोलियम बोल, तो आप आज की तारीख के जो भी यूजेस है लिख सकते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है तो और पेट्रोलियम से और सारे कुछ नेचुरल रेमेडीज़ बनाते थे। अगर हाथ कट गया, लेग जाके ऐसा रख दिए, वो कर दिए, उस तरीके से होता था। लेकिन पेट्रोलियम ये चीज़ है क्या, व्हाट इज़ दिस प्रोडक्ट, ये कब रियलाइज़ हुआ ह्यूमन काइंड को, इंसानों को, कि जैसा ही साइंस और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस तरक्की करी और पेट्रोकेमिकल्स के पेट्रोल से कई सारे प्रोडक्ट्स बनाना चाहे, तो जब इंसानों को एहसास हुआ कि पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट और विटल यानी मटेरियल है विच इज़ गिवन बाय दी गॉड। ये जो है पेट्रोलियम बहुत ही यानी कि नेचुरल का बहुत अच्छा तोहफा है, ये समझने आया है। तो ये हो गया हमारा कोल एंड पेट्रोलियम को लेके कि क्या होता है। अब हम देखेंगे कोल से कौन से प्रोडक्ट निकलते हैं, पेट्रोलियम से कौन से प्रोडक्ट निकलते हैं। कोल इनिशियली उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है रहता कैसा है उन्हें, और पेट्रोलियम क्या खाली आपको प्योर पेट्रोलियम रहता या फिर उसका भी कुछ पहले अलग अपीयरेंस रहता, उसको रिफाइन करके करते ना। अब थोड़ा सा नेचुरल गैस के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। नेचुरल गैस एज फ्यूल, यानी नेचुरल गैस क्या है, फ्यूल के जैसा है उन्हें। तो देखेंगे क्या है। नेचुरल गैस इज फाउंड trapped between in pervasive rock sometime along with the petroleum pervasive. This gas was allowed to escape or even burn while pumping out the petroleum. Now the natural gas is treated as equal precious because it is a safer for the environment. Natural gas is stored under high pressure as CNG, compressive natural gas. The exploitation for more petroleum and natural gas are going on under the supervision of ONGC, Oil and Natural Gas Corporation, throughout India. In India, gas fields have been discovered in Tripura, Mumbai Highway, Krishna, Godavari Delta and जैसलमेर। तो देखिए अब ये मज़े की टॉपिक है थोड़ा सा। देखिए जो नेचुरल गैस है वो क्या होता है, ये यहाँ पे आपको यानी कि थोड़ा सा रॉक्स है पूरे, जैसा आप डायग्राम में देख रहे थे, ये हमारा अर्थ क्रस्ट था।
तो जो नेचुरल गैस जो दबे हुई रहती है, यहाँ पे दबे हुई रहती, वेरास उसके नीचे आपको नीचे की लेयर पेट्रोलियम की रहती, ये नेचुरल गैस की रहती। तो उसको क्या करते, निकालते। कैसा निकालते, उसको जला के करके उसका एक प्रोसीजर रहता, उसको निकाला जाता। लेकिन जब नेचुरल गैस को स्टोर करने की बात आई, वो बिल्कुल हाईली सेंसिटिव रहता, तो उसको नेचुरल करने के लिए एक प्रेशर बनाते। प्रेशर बनाने के बाद उसको स्टोर करते हैं, उसका नाम रख दिए CNG यानी कंप्रेसिव नेचुरल गैस। फिर आगे की बात सुनिए कि ये जो गैस होती है बहुत ज़्यादा सेफ़र है इन्वायरमेंट को लेके, यानी कि इन्वायरमेंट को लेके उसके अंदर कुछ भी पोल्यूशन वगैरह नहीं रहता। और नेचुरल गैस क्या है, आज की तारीख में पेट्रोलियम का जगह लेने की सोच रही। और उसके साथ साथ जो हमारे इंडिया में जो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को यानी कि कंट्रोल करते, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑयल एंड नेचुरल NATURAL GAS गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, CORPORATION। और इसका जो आपको एब्रीवेशन है वो यूज़ होता ONGC, तो ये एब्रीवेशन यूज़ होता। और हमारे इंडिया में नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाई जाती, वो है कि त्रिपुरा एक स्टेट है हमारा, वहाँ पे पाए जाए। मुंबई हाईवे, जो हमारा मुंबई का हाईवे है, उसके नीचे बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस आपको अवेलेबल है या फिर एग्जिस्ट है। कृष्णा एक रिवर का नाम है, उसके पास है। गोदावरी डेल्टा यानी गोदावरी नदी के पास है। और जैसलमेर आई थिंक दिस इज़ अ प्लेस इन दी राजस्थान और समथिंग वेयर ऑन नॉर्थ इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया के आसपास कहीं पे ये प्लेस मौजूद है। तो आप नेचुरल गैस का यानी कि यूज़ क्या है आज के ज़माने में, दो बड़े यूजेस है ऑल स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। एक LPG के उसमें यूज़ करते हैं नेचुरल गैस को, और दूसरा CNG, ये दो इसके मेन इंपॉर्टेंट यूजेस है। तो अब हमने पढ़ लिया था कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एज फ्यूल, यानी कि वो फ्यूल के जैसा काम करते। ये हो गया था यूजेस के बारे में हुआ था, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के यूजेस है और वो कहाँ पाए जाते यूजुअली। अब वो लोग उसके अंदर से क्या क्या हो सकता है, यानी फ़ायदे क्या है उसके अंदर और क्या क्या है पढ़ेंगे, और थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। सो इन द टुडेज सेशन आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर अस। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का जो हमने पढ़े थे वो इनफ है। आज आपको नोट्स क्या क्या प्रिपेयर करना है देखिए। कोल के बारे में जो मैं स्क्रीन पे लगाया था वो पूरा लिख लेना है। पेट्रोलियम के बारे में जो मैं लगाया था वो पूरा लिख लेना विद डायग्राम को भी ड्रॉ करना। नेचुरल गैस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैं पढ़ के सुनाया था, वो आप थोड़ा बहुत लिख लीजिए। नेचुरल गैस को क्या लिख सकते हैं आप, नेचुरल गैस, ठीक है, एक काम करता हूँ मैं नेचुरल गैस के बारे में भी थोड़ा सा आपके स्क्रीन पे लगा देता हूँ, देख लो। होप यू हैव सॉ अबाउट नेचुरल गैसेस। ये तीनों के पक्के नोट्स बना लेके रख लेना और थोड़ा बहुत पढ़ लेके रखना, क्योंकि इसके बारे में और बहुत पढ़ने वाले हैं अपन, बहुत, यानी और एक यूजेस क्या हो सकते कोल के, पेट्रोलियम के, नेचुरल गैसेस के इन आवर नेक्स्ट सेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन और टुडेज क्लास। वी विल गोइंग टू कंटिन्यू आवर लाइक दिस चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम of class 8th physics and chemistry in our next sessions. You are watching Ahliabad High School and Junior College YouTube channel. I am Sayyid Rashid, physics teacher and lecturer in this organization. Have a great time. Take care. Thank you.